Good morning, my dear students. My name is Akhilesh Gupta. I am going to take Database Management System, that is DMS. The subject code for the subject is 22319. Before starting with the subject DMS, I'd like to tell you that how many subjects you have in third sem. You have total 5 subjects, that is C++, DSU, computer graphics, digital technique and DMS. Okay, out of this DMS will be taken by me. So again a small introduction about the subject, that is there is total, the subject contains theory paper, okay, then we have practical part, that is your manual, then we have end semester exam. Okay, as you know, theory parts goes like this: 70 plus 30 barabar 70 marks theory paper, and this 30 your project marks and class test marks. Okay, then this is for 25 marks your internal practical assessment. Then end semester exam, this is of 25 marks and this is external. So total this subject is for 150 marks. Okay, we have external practical exam for the subject. The subject is very much important as you have the same subject in degree also. The 70% content is same as it is. The 30% will be advanced in degree. The subject is even more beneficial in terms of your career also. You have to study the subject very seriously because this is the base for database subject. Okay, so coming back to the topic, first of all, what is database, how to manage that. ठीक है, अभी सब्जेक्ट का मेन मोटिव क्या है, इसमें कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. We are going to use software, either SQL, structure query language, or Oracle for the practical part. These are the softwares which actually works at the back end. Okay, so something is called as front end and something is called as back end. So we are working on the back end part. Now what is back end and front end, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है. सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो भी डेटाबेस है वी हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली. अभी मैनेज किस टर्म में करना है उसके लिए बहुत सारे टर्म्स है, वो एक एक करके हम देखेंगे. ओके, नाउ what is data? If I want to tell you what is data, then you can say that data is a collection of various facts that can be in any format, that can be in the form of text, images, audio, video, etc. बराबर ना. अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने डेटा स्टोर करके रखा है, तो आपके हिसाब से आपने क्या क्या स्टोर किया है वहां पे. आपने अपने कुछ फोटोज डाले होंगे, बराबर, आपने अपने कुछ वीडियोज रिकॉर्ड किए होंगे, ठीक है, वो डाले होंगे, बराबर है ना. आपने अपने कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वहां पे डाले होंगे, आपने कुछ सॉन्ग्स डाले होंगे, गेम्स डाले होंगे, मूवीज डाली होंगी. तो ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों को आप क्या बोलते हो, डेटा बोलते हो. तो अगर डेटा का डेफिनेशन मुझे देना होगा तो मैं क्या दूंगा डेफिनेशन. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फैक्ट्स एंड दोज फैक्ट्स कैन बी इन एनी ऑफ द फॉर्मेट, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एक्सेट्रा. ओके, सो दैट वाज वेरी सिंपल. So even you'd like to say that data is a raw material. Why it is called as a raw material? Because it is a collection of everything. It is a collection of everything, every fact that I have said right now. Okay, so that is called as raw material. And when this raw material is converted into a meaningful information or a meaningful form, when the data taken from this raw material are converted into a meaningful form, that becomes an information. I hope you are getting what I am trying to say. Then डेटा के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट इस सिंपल एग्जांपल से आपको डेटा समझ में आ गया रहेगा कि डेटा होता क्या है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस.
Now, what do you mean by database? It is a place of data, or we can say it is a house of data. ठीक है, डेटाबेस वो जगह है जहां पे ये सारा डेटा स्टोर होता है. बराबर, डेटाबेस वो जगह है जहां पे ये सारा डेटा एक साथ स्टोर होता है. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पे ये सारा डेटा स्टोर होना चाहिए? क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डेटाबेस के? बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल, स्कूल्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, online railway reservation, etc. These are the example for the database. How? Because here all the important information are stored. Example, schools. तो schools में बच्चों का information, teachers का information, non teaching का information, ठीक है, उनका सब डिटेल, बच्चों ने फीस भरा है कि नहीं, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड है, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है. बराबर, all these things are data and these are stored somewhere in the system. Now that place will be called as database. Okay, another example, a railway reservation, online railway reservation. अब ये ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन में क्या होता है? अगर आपने 2 महीने के बाद का टिकट बुक किया हुआ है, अगर आपने 2 महीने के बाद का टिकट बुक किया हुआ है, तो तब तक आपके ट्रैवल करने से लेके ट्रैवलिंग आपके खत्म होने तक आपका सारा डेटा वो सिस्टम में स्टोर होता है. जहां पे स्टोर होता है वो क्या हो गया? डेटाबेस हो गया. ओके, सो डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर ऑल दिस डेटा आर स्टोर्ड टुगेदर, so that जब भी आपको चाहिए वो डेटा आप वहां से ले सकते हो. That was the example for database. Now, next topic is DBMS, that is database management system. What do you mean by database management system? Database बराबर management system, मतलब जो भी डेटाबेस में मैंने डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, मुझे वो मैनेज करना पड़ेगा. किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा? इस तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि जब भी मुझे डेटा को एक्सेस करना हो या जब भी मुझे डेटा की जरूरत पड़े या डेटा को मैनिपुलेट करना हो, उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो, वो मैं इजीली कर सकता हूँ. ठीक है, वो मैं इजीली कर सकता हूँ. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड व्हाटएवर डेटा यू आर स्टोरिंग इन द सिस्टम शुड बी मैनेज इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इजी एक्सेस फॉर द यूजर. It becomes easy for the user to manipulate it. Okay, so that's the important for DBMS, database management system. One more important thing about DBMS is that DBMS is actually a file format. I want to say that the data which are stored in DBMS are in the form of file format. Okay, ये point बहुत important है, आपको याद रखना चाहिए. Then RDBMS. What do you mean by RDBMS? RDBMS अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पहले जो ऊपर का टॉपिक था वहां पे लिखा था DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसी DBMS के आगे मैंने R लगा दिया. अभी R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है रिलेशनल. ओके, सो अगर मैं ये पूरा RDBMS एक साथ पढ़ूंगा तो वह कैसा दिखेगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Now, what is the difference between DBMS and RDBMS? ये एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है. It's very much important. Okay? Then, what is the example for DBMS software and RDBMS software? ये R का difference क्या है? Now listen. When we compare DBMS and RDBMS, the very first point we should say the full form for it. That is database management system and relational database management system. Okay, in DBMS the data are stored in the form of files, whereas in RDBMS the data are stored in the form of tables. Okay, in RDBMS the data are stored in the form of tables. अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. अगर मैंने यहाँ पे लिखा RDBMS, इसका मतलब क्या होता है? This R stands for relational. This R stands for relational database management system. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिलेशनल के अंदर एक वर्ड आता है रिलेशन, एंड रिलेशन का डेटाबेस के अंदर दूसरा नाम है. ठीक है, रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल, और यू कैन से टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशन. यानी टेबल को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं.
तो इसका नाम क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब the data in RDBMS are stored in the form of tables. The data in the RDBMS are stored in the form of tables. Okay, that is the meaning. First you got the full form, then you got the differentiation of this is file format and this is actually my table format. Agar we are talking about the table, if we are talking about the table, then one more important thing comes. क्योंकि टेबल बनता है with the collection of rows and column. टेबल बनता है with the collection of rows and column. Okay, so we'll move further. Till now I have tell you about the subject. How many subject we have? We have total 5 subject. We have C++, DSU, computer graphic, digital technique and DMS, that is database management system. This subject will be taken by me. Okay, and then I have told you about the subject, that is the basic concept about the database. I have told you about data, definition of data with example, then what is database again with the application, then what is DBMS and what is RDBMS. Now I am going to tell you something more detail about the RDBMS. Till now we have discussed the difference between the DBMS and RDBMS. Okay, तो सेकेंड पॉइंट पे हम लोग थे जहां पे एक वर्ड आता है टेबल. नाउ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. एग्जांपल, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ टेबल. टेबल कैसे बनेगा? रोज एंड कॉलम से. टेबल कैसे बनेगा? रोज एंड कॉलम से. रोल नंबर, नेम, देखो यहां पे ध्यान से. अब ये एक टेबल है, बराबर. इट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. ऐसे रोज हो गया, ठीक है, ऐसे कॉलम हो गया. तो आप देखोगे तो इसमें कितना रो है? 1 2 3 4 5. देयर आर 5 रोज, ठीक है. एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव 1 2 एंड 3. वी हैव 3 कॉलम्स. तो ये समझ में आया. नाउ दिस इज अ टेबल विच इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. तो ये मेरा रो हो गया, ये मेरा कॉलम हो गया, बराबर. नाउ दिस रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज टपल और रिकॉर्ड. ये रो का भी दूसरा नाम है. ये रो का दूसरा नाम क्या है? टपल या फिर रिकॉर्ड. ओके. फिर ये जो कॉलम होता है, ये रो है, ये जो कॉलम होता है इसका भी दूसरा नाम है विच इज कॉल्ड एज फील्ड. विच इज कॉल्ड एज फील्ड. नाउ दिस इज अ टेबल विच इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, where row is also called as tuple or record and column is also called as field. Okay, and the table is also called as relation. Now मैंने क्या बोला कि RDBMS में जो भी डेटा होता है वो सब टेबल फॉर्मेट में होता है. यानी इसमें जो भी डेटा मैं स्टोर करूंगा वो इस तरीके से स्टोर होने वाला है, टेबल फॉर्मेट में. एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करना है इन RDBMS, तो वो बाय डिफॉल्ट टेबल फॉर्मेट में होगा, बराबर ना. तो अगर ये टेबल फॉर्मेट में होगा, मेकिंग इट वेरी कट शॉर्ट एंड सिंपल, आई विल से ये रोल नंबर होगा, ये नेम होगा और ये एज होगा. और भी चीजें हो सकती है, फिलहाल मैं इतना एग्जांपल ले रहा हूं, बराबर. ये हो गया एक टेबल. टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट टेबल, बराबर. इसके कॉलम में मैंने क्या लिखा है? रोल नंबर, नेम एंड एज. समझ में आ रहा है आपको? नाउ this thing, that is roll number, name and age, roll number, name and age is written at the top of the every column. अगर आपने ध्यान से देखा, roll number, name and age is written at the top of the every column. See, ये कॉलम है, उसके टॉप में लिखा हुआ है. ये कॉलम है, इसके टॉप में लिखा है. ये कॉलम है, इसके टॉप में लिखा हुआ है, बराबर ना. सो कैन आई से कॉलम हेडिंग? इसको मैं कॉलम हेडिंग बोल सकता हूं ना, बिकॉज ये कॉलम है और जो चीज टॉप में लिखी रहती है उसको हेडिंग बोलते हैं. तो ये मेरा कॉलम हेडिंग हो गया. क्या? रोल नंबर, नेम एंड एज, बराबर. नाउ टेबल के अंदर जो भी सबसे टॉप में लिखा जाता है, टेबल के अंदर जो भी सबसे टॉप में लिखा जाता है, या फिर टेबल के अंदर जो कॉलम होता है उसकी हेडिंग में जो भी लिखा जाता है,
that is called as attributes. That is called as attributes. Okay, so this is our first lecture. I won't make it much complicated. I'll make it very much simple. Okay, so मैं भी इतना ही बोलना चाहूंगा RDBMS के बारे में. In next video I'll put more thing in much more detail. ठीक है? Before moving further, I hope you have got my point till now. We have studied data, we have studied database, then DBMS, then RDBMS, and then okay, in RDBMS, then the comparison, we have studied 2 points till now. Then in RDBMS, what is table, what is the another name for table, then what are row, what is column, another name for row and another name for column. Okay, that was much simpler. Then before moving on, the thing which I have told you about the use of the database, that can come for 4 marks in the exam. For example, application of database. So उसका application कहाँ हो सकता है? Banking हो सकता है, online railway reservation, online, ठीक है, online shopping, बराबर, school, colleges, offices. This can be the example for the application of. These are the example for the database, or you can say application for database. Now, I think this much is enough for today. Before moving on, I would like to tell you something about this subject and about me. See, as you know that during this pandemic, we have started all these online lectures for the students so that you should not miss out your studies. Okay, so I would like to request you that please maintain a notes. The notes will be provided by us, subject wise, point wise, syllabus wise. You should not buy any of the books right now for my subject. I'm talking about for my subject. आपको मेरे सब्जेक्ट के लिए बुक्स वगैरह फिलहाल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. ऑल द नोट्स, पॉइंट वाइज, सिलेबस वाइज, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग. कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मिस होगा. ओके, जब भी मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का डिटेल भेजूंगा, मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको सिलेबस भेजने वाला हूँ. प्लीज उस सिलेबस के थ्रू जाइए. देर आर टोटल 5 चैप्टर्स फॉर DMS. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 इज डेटाबेस कंसेप्ट. चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी ना, डेटाबेस हो गया, जावा हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं. ऐसे तो सारे के सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर उनके जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वो बैकएंड के जरिए, एग्जाम्पल डेटाबेस, जावा, ऐसी चीजों पे ज्यादा ये प्रेफर करता है. मतलब आप ये जो चीजें पढ़ने वाले हो DBMS के अंदर, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है और आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. आज पहला लेक्चर था इसलिए मैंने बहुत सारे टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किए, पर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे. तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो गूगल मीट पे आप लाइव आकर वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो. फॉर मी या फिर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर फ्री टू आस्क n number of question. From my point of view, you are free to ask n number of question. I don't mind at all. आपको जितना भी क्वेश्चन मुझे पूछना है आप बिंदास पूछ सकते हो. ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड. आपको टॉपिक एक बार मैंने पढ़ा दिया, टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट है आप पूछो. अगर आपको आउटर वर्ल्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी चीजें पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन पहले जो सिलेबस में है पहले वो कंटेंट क्लियर करके लेना है, बाकी चीजें बाद में. Okay, I'll repeat. I don't have any restriction for the students that you should not ask me particular question. You can ask me n number of question. You can clear out doubts. I don't have any issue. Then, please maintain a 200-page notebook. Please maintain a 200-page notebook. मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम समझते हैं, अगर उन सारी चीजों को हमने एक बार अच्छे से लिख कर समझा तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है और ज्यादा समय तक हमें वो ध्यान रहता है कि हमने क्या पढ़ा था. और उसमें एक अलग सी क्वालिटी आती है. वे ऑफ राइटिंग, पैटर्न, सब कुछ समझ में आता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखना पसंद नहीं है, जो सिर्फ ओरली ही कर लेते हैं और उतना ही पढ़ के जाते हैं और पेपर में लिख के आते हैं. चलेगा, आई डोंट हैव एनी इश्यू. ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है. ठीक है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप 200 पेज का एक लॉन्ग नोटबुक लीजिए. जो भी नोट्स मैं आपको भेजने वाला हूं बाद में,
ठीक है, उसका PDF फाइल बना के आप वो सब पढ़ पढ़ के अच्छे से लिखिए लाइन बाय लाइन, ताकि सिलेबस के हिसाब से आपके अपने आप नोट्स बनते जाए और आपको कोई भी बुक वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको A से लेके Z तक हर एक चीज मिलने वाली है, हर एक चीज। डू नॉट वेस्ट योर मनी इन बाइंग बुक्स, बिकॉज बुक्स में कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीजें गलत है, कुछ बराबर नहीं है, कुछ मिस्टेक्स है उसके अंदर, आपको पता नहीं चलेगा, आप वही पढ़ के जाओगे पेपर में, फिर गलत लिख के आओगे। What I have done, I have filtered my notes very properly in a very well mannered. I have filtered my notes. आप उस तरीके से लिखो, उस तरीके से पढ़ो, आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। सो बुक वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बोला है, आप प्लीज वो ध्यान से सुनिए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऑनलाइन आके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। So my last request is please maintain a 200-page long book. Why I am saying long book? Because बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, बड़े डायग्राम्स आएंगे, टेबल्स आएगा ड्रॉ करने के लिए, क्वेरीज होंगी, तो अगर लॉन्ग बुक रहेगा तो वो मेंटेन करने के लिए भी अच्छा पड़ेगा। इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। Now class, in next video we'll study so many topics. For example, data abstraction, बाद में 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या होता है, बाद में RDBMS और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कंपैरिजन के और पॉइंट्स देखने वाले हैं। ऐसे डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, आइसोलेशन, डेटा इनकंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें हम देखने वाले। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच। बी होम एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।